Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 21st of September 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about these three important topics. The number one is Women's Reservation Bill. Number two is New Ethics in the Outer Space. Number three is 3 years of the Abraham Accord. Before we discuss in detail about these topics, this is our YouTube channel IAS Cafe. If you're really liking our initiative, please subscribe our channel, like and share our videos. Now, coming back to the main discussion about the Women's Representation Bill. Recently, the Indian government has introduced 128 Amendment Bill 2023 और इस बिल के अंदर 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है पार्लियामेंट की लोकसभा में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे वुमेन को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई। तो क्या ये 33% रिजर्वेशन आप सभी के लिए एक नई बात लग रही है आप लोगों को? Have you ever heard the 33% reservation before this newspaper editorial? Yes. Whenever we talk about the local government, we must know that 33% reservation to women is given in that thing, right? So what I want to say is that ये initiative जो लोकसभा या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लिया जा रहा है वो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट में हो रखा है। कैसे? We all know that the 73rd Constitutional Amendment Act brought a wonderful change, that is the establishment of Panchayati Raj institution. Under this act, it provides 33% reservation to the women, including the women of the scheduled caste and scheduled tribe. That means जितना SC और ST का रिजर्वेशन है उसका 33% आपको वुमेन के लिए वहां पे रिजर्व सीट जो है वो मिलने वाली है। करेक्ट? तो सेम थिंग सिमिलर तरीके से ये जो 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए है वो डिस्कशन हो रहा है कि हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके आए। तो अब इस बिल का एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस है। Number one is the reservation provision. The bill proposes to reserve 1/3 of the seats that automatically take us towards the 33% of the reservation in the Lok Sabha and state legislative assemblies for the women, including those belonging to the SC and SC. तो ये बिल्कुल आपके पास जो पंचायत के जो रिजर्वेशन होते हैं वुमेन के लिए ठीक सेम उसी तरह से यहाँ पे बात करी गई। Constitutional amendment similar to the previous bill from 2010. This one introduces new articles, that is 330A, 332A in the constitution to the effect of these changes. अब इस पूरे बिल के अंदर एक सनसेट क्लॉज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है कि ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 15 साल के लिए होगा, will be applicable for 15 years from the act's commencement. Discourse on the women's reservation. देखो, post independence के बाद से डिमांड थी. The discussion on the women's reservation date back to the pre-independence era, where women's organization advocated for the women's political representation. Recommendations भी दी गई, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई, जैसे कि 1955 में कमिटी बनी, वो कमिटी ने ये रिकमेंड किया कि 10% रिजर्वेशन जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को मिलना चाहिए। फिर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया वुमेन के लिए 1988 में, उन्होंने ये सजेस्ट किया था 33% ऑफ रिजर्वेशन जो है वुमेन को मिलना चाहिए इलेक्टेड बॉडी में। और फाइनली द पंचायती राज एक्ट 1993 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है लिया गया was the amendment of Panchayati Raj Act in 1993, reserving the 33% of seats in the local government bodies for the women.
2010 में राज्यसभा का अप्रूवल देखने के लिए मिला, which finally gave momentum to this bill. अब यहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं? देखो इस बिल में क्या बात हो रही है कि ये जो बिल है आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? डीलिमिटेशन आप सबको पता होना चाहिए कि हर सेंसस के बाद में आपकी डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस होता है अंडर विच इट इज डिसाइडेड द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर सेंसस के बाद में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो फिक्स की जाती है, एज पर दैट द नंबर ऑफ सीट एलोकेशन इज डन। तो इस बिल के अकॉर्डिंग जब आपके पास जो डीलिमिटेशन एक्ट होगा वो डीलिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी, सॉरी, आप उसके बाद ये जो वुमेन का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। बट डीलिमिटेशन जो है वो क्लोज हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट और वो अगले आने वाली 2-3 सालों में तो होने नहीं वाला, यानी तब तक आप इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके पास प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल आ रहा है, that is delimitation process for dependence. The bill links the implementation of the women's reservation to the delimitation process, which could significantly delay its enactment. Delimitation would occur after the publication of census result with the 2021 census, delay potentially affecting the timeline. यानी कि 2026 तक जो delimitation है वो आपके पास next होने वाला है. Operational timeline. So given the current circumstances, women's reservation might not be effective till the general election of 2029. तो ये जो डीलिमिटेशन पे डिपेंडेंसी है इसको अगर देखें तो 2029 तक तो ये काम नहीं होने रहा। सीट आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करोगे आप कि ठीक है 33% आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है, लेकिन ये क्या प्रोसेस क्या रहेगा कि जहां वुमेन ज्यादा है वहां पे क्या करोगे या फिर आप कास्ट बेस करोगे, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस? सीट का आइडेंटिफिकेशन जो है आप उसको किस तरह से करोगे इसके ऊपर अभी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए गए। करंट सीट रिजर्वेशन प्रोसेस यानी अभी जो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है, द डीलिमिटेशन एक्ट 2002 lays down the principle for reserving the seat for scheduled caste and tribe based on the population distribution. Constitutional amendment required, that is the amendment necessity. To operationalize the women's reservation scheme, amendments to articles 82 and 170 are essential. इसमें पंचायती राज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? While the reservation for the women exists in the Panchayati Raj institution, it operates under Article 243D and has achieved the significant representation in the several states. According to the government data as of September 8, 2021, at least 18 states, the percentage of the women elected representatives in Panchayati Raj institution was more than 50%. Now, इसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन को चैलेंज किया था। देखो एक तो पार्टी का जो टिकट है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये पॉलिटिकल जो कनेक्शंस होते हैं फैमिली उससे रिलेटेड होते हैं। परसीव्ड इलेक्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल बैरियर्स, वल्नरेबिलिटी, क्योंकि वुमेन को यहाँ पे ह्यूमिलिएशंस को फेस करना पड़ता है, अब्यूसेस होते हैं, थ्रेट होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं और पेट्रियार्की आपको जरूर मिलेगा बिकॉज वुमेन प्रायोरिटाइज की फैमिली हाउस होल्ड ड्यूटीज है वो उनको पहले करनी चाहिए ओवर द पॉलिटिकल एम्बिशंस ड्यू टू इनग्रेड पेट्रियार्कल नॉर्म्स। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लॉ मेकिंग? अगर आप वुमेन को लॉ मेकिंग के अंदर लेके आ रहे हो, मान लो कि पार्लियामेंट के अंदर आज की डेट जस्ट इमेजिन कि 50% वुमेन हो और 50% मैन हो, तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? हर जगह आपको चेंज मिलेगा, जो बायसनेस है लॉ में वो भी आपको बदलने में दिखेगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राइट, दैट इज द लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन empowers the women to participate in the lawmaking and hold the government accountable. Gender parity indicator, women's presence in the national parliament reflects the gender equality progress in the politics. Unique skill, women bring diverse skills to the politics, advocating women's interest, efficiency and integrity. अब इस तरीके की जो रिजर्वेशंस होती है हमको उनकी जरूरत क्यों है? Ensuring the representation, एंट्री को इनकरेज करना, कैपेसिटी बिल्ड, चेंजिंग द परसेप्शन, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज को प्रमोट करना। अगर लॉ मेकिंग जो आपके पास बॉडीज है उसमें वुमेन नहीं होती है
तो कहीं ना कहीं आपको जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज नहीं दिखेंगी, राइट। इंश्योरिंग द रिप्रेजेंटेशन, मान लो कि दिल्ली क्राइम या फिर दिल्ली की सेफ्टी पे कोई हमको पॉलिसी या तो रूल या कुछ भी लॉ लेके आना है, इफ मोस्टली मेन आर देयर, तो हो सकता है पॉलिसीज होगी दैट गर्ल्स शुड नॉट गो आउट ऑफ द होम आफ्टर 7 p.m. गर्ल्स शुड नॉट डू दिस एंड दैट टू फॉर द सेफ्टी। बट अगर वुमेन आती है लॉ मेकिंग में, तो आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आप वुमेन को रोको मत बाहर जाने से, मेक सच इनिशिएटिव कि जिसको उनको खतरा ना हो, राइट। आप मेन को कंट्रोल करो, मेन को रेगुलेट करो और कैमरास लगाओ, अवेयरनेस करो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, do not stop the women to do the activities. So need for such reservation, ensuring the representation, that reservation guarantees the women's presence in decision-making bodies, addressing the underrepresentation, encouraging the entry. Reservation encourages women to enter the politics, contest elections, and engage in the political process. Capacity building, that participation in the legislative process enhances women's political capacity, nurturing the effective leaders, changing the perceptions, again the gender sensitive policies, same reasons. So how can you conclude it? What is the right pressing need for now? ये काफी टाइम से बिल जो है ड्यू है, एंड इट्स हाई टाइम कि इस बिल को हमें लाना चाहिए। इसमें untapped potential, that is women's leadership qualities, are undeniable, and the participation is essential for India's progress. Call for action. As India aspires to be a global leader, it must prioritize the women's political empowerment and pass the women's reservation bill without further ado. Now, coming to the second topic, that is the new ethics for the outer space. Outer space exactly है क्या, उसको समझते हैं। आउटर स्पेस यानी कि जो सेलेस्टियल स्पेस होता है, ये आपके पास अर्थ है। अर्थ का जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ते, दैट इज डिफरेंट लेयर्स, दैट द डिफरेंट गैसेस, राइट। सो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ही दूर, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का ये जो खाली स्पेस है, इसको आउटर स्पेस बोलते हैं। यानी इट इज अ काइंड ऑफ अ वैक्यूम दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इंडेफिनिटली यूनिवर्स तक ये एक्सटेंड करता है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस तरह से हम कॉन्टिन्यूसली मिशन को लॉन्च किए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान था, आपके पास जो विक्रम लैंडर था, उसकी लाइफ कितनी थी, 14 दिन। अब 14 दिन के बाद वो वही गिर गया होगा, डेबरी बन गया होगा, कचरा बन गया होगा। तो इस तरह से कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, तो आउटर स्पेस पे जो डेबरी है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के जितने भी मिशन है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपके पास आउटर स्पेस की जो एथिक्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात जो है वो बोली जा रही है। रेगुलेशन एंड एंटार्क्टिक्स बिल्डिंग, with the International Geophysical Year in 1958, seeing many players becoming active in Antarctica and fears of the Cold War rivalry taking unexpected turns, US President convened in 1959 an Antarctic conference of 12 countries active in Antarctica during to negotiate a treaty. तो जब अर्जेंटीना ने प्रपोज किया एटॉमिक एक्सप्लोजन be banned in total on Antarctic, the US objected, saying only those tests that were carried out without a prior notice should be banned. देखो एंटार्क्टिक जो है वहां पे खतरा है, इसको देखते हुए अर्जेंटीना ने एक प्रपोजल किया कि एटॉमिक एक्सप्लोजन पूरी तरह से बैन होना चाहिए एंटार्क्टिक के अंदर। लेकिन एज यूजुअल यूएसए का ऑब्जेक्शन आया। यूएसए का ऑब्जेक्शन ये था कि हम टोटल बैन नहीं करेंगे, राइट। हमारा बैन किस तरह से होना चाहिए, दैट वो एटॉमिक एक्सप्लोजन जिसमें आप नोटिस नहीं दे रहे हो, पहले से आप कंसल्ट नहीं कर रहे हो, वो बैन होना चाहिए। यूएसए और चिली ने अर्जेंटीना को सपोर्ट किया।
leading US to agree and take the negotiations forward. Finally, US को इसमें agree होना पड़ा. In present times, when satellites can pick up any activity that is suspicious, none of them can do anything questionable there. They will be found out, but even before the world developed its the sky eyes, the early Antarcticans had to share this space with others if only to justify their own. Argentina, Australia, Belgium, Chile, France, Japan, New Zealand, Norway, UK and US 12 countries, they have established a treaty. तो यहाँ पे इनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने जो ट्रीटी है वो बनाई. ठीक है. जब ये ट्रीटी बन गई, Earth, sea, and ice are different from the sky, and it's fierce, but we know that there has long been Antarctic there. तो ये थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड एडिटोरियल आज आया है. यहाँ पे मोस्टली सेफ्टी की बात करी गई है विथ रिस्पेक्ट टू एंटार्क्टिका, राइट, कि जो आउटर स्पेस है वहां पे एथिक्स क्या कहना चाहिए, क्या हमको वहां पे उसकी सेफ्टी को फोकस रखना चाहिए या फिर जो कोल्ड वॉर जैसे झगड़े हैं उन पे जाना चाहिए. Then there is third topic, Abraham Accord. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर. 3 साल पहले अब्राहम जो अकॉर्ड है वो साइन हुआ, उसका 3 साल हो चुका है, तो उस पर एक एडिटोरियल आया. पहले मैं चाहूंगी आप एक मैप देखें. दिस इज अ मैप ऑफ सेंट्रल एशिया. मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कवर करिए. आप एक बार लोकेशन देख लीजिए. जब आप मैप पे लोकेशन की तरफ जाते हो, फोकस, दिस इज योर ईरान. ठीक है. ये जो पूरा बाउंड्री है ये आपके पास ईरान की बाउंड्री है. ये है आपके पास इराक. ये सीरिया हो जाएगा आपके पास. दिस इज लेबनान. देन आपके पास इजराइल. आपका होमवर्क है, मुझे यहाँ पे बताओ गाजा पट्टी, दैट इज गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है. दिस इज योर इजिप्ट. दिस इज सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, और ये हो जाएगा आपके पास येमेन. जब ये मैप क्लियर है, अब आपको समझ आएगा कि जो अब्राहम अकॉर्ड है वो किन किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है. एक है आपके पास इजराइल, यूएई और बहरीन. तो कौन कौन सी कंट्रीज है आपके पास? एक है आपके पास इजराइल, ये. एक है आपके पास, इसको आप इस तरह से कीजिए, तो यू हैव द इजराइल यानी कि ये चीज. देन आपके पास है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और देन आपके पास यहाँ पे है बहरीन. तो इन 3 कंट्रीज ने मिलके एक अकॉर्ड साइन किया है, दैट इज अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट. वो है आपके पास अब्राहम अकॉर्ड. ठीक है. दैट इज इजराइल, यूएई और बहरीन. प्लीज रिमेंबर, 3 countries who signed the Abraham Accord is your Israel, the United Arab Emirates and Bahrain. तो ये पहला पीस डील हुआ है 26 सालों में, जिसमें अरब और इजराइल के साथ पीस रिलेशंस देखे गए हैं, क्योंकि इनके आपस में बनती नहीं. पहले प्रीवियस एग्रीमेंट, इससे पहले सिर्फ 2 पीस डील है बिटवीन द इजराइल एंड द अरब स्टेट. इजिप्ट वाज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन अ पीस डील विद द इजराइल. जॉर्डन ने 1994 में किया, बिकॉज इजराइल के साथ यूजुअली पीस जो है वो होता नहीं था किसी भी कंट्रीज का. तब अरब और इजराइल का जो रिलेशन है उसको हम एक बार देखते हैं. दैट since the Israeli independence in 1948, it has fought several wars with Arab neighboring countries. The persecuted Jews saw the Israel as the promised home, with the Arabs saw it as an occupation. अब इस अकॉर्ड का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? जो अरब कंट्रीज है ग्रेजुअली डीकपल कर रही है पैलेस्टीन का जो मुद्दा है जिसका हमेशा झगड़ा होता था. तो बेसिकली दे आर डीकपलिंग देमसेल्फ फ्रॉम द पैलेस्टीन क्वेश्चन. पैलेस्टीन कौन थे? Palestine was among the former Ottoman territories which were placed under the UK administration by the League of Nations in 1922. Full diplomatic ties यहाँ पे थे उनके साथ, right? तो इनको ये closer relations यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है. What is the concern? The Palestine have not embraced the USA's vision. 86% जो Palestine है उनको लगता है कि normalization agreement between the UAE serves only Israel interests.
ना कि उनके इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो शिया सुन्नी का जो रिफ्ट होता रहता है सेंट्रल एशिया में, ये ज्यादा बढ़ सकता है, वायलेंट यहाँ पे हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है। इंडिया के लिए हमेशा डिफेंस का अपॉर्चुनिटी होती है, सिक्योरिटी का अपॉर्चुनिटी होती है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप मैप वाइज प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन इसके ध्यान रखें, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।